हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CA वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, दी प्लेसमेंट मंत्रा। ऑब्वियसली दिस इज ए पेड कोर्स। सो ये पहले एक सेशन जो था हाउ टू फिल दिस फॉर्म, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ CMA प्लेसमेंट इज फिलिंग दिस फॉर्म। अगर ये फॉर्म आपने ढंग से भरा है देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय लॉट ऑफ कंपनीज। लेकिन अगर इस फॉर्म में छोटी से छोटी गलती होगी तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेरियस कॉमन क्वेरीज आते हैं बच्चों के बीच में, अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे, हमारे एक्सपीरियंस को हम अपना कैसे लिखेंगे, मार्क्स को CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर ASTP या फिर PPOP के लिए सेंटर कौन सा देना है, प्लेसमेंट के लिए सेंटर कौन सा देना है, वो हर चीज पे हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1, हाउ टू फिल द प्लेसमेंट फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, हेलो गाइस, first of all, hearty congratulations to all of you. You have cleared a very beautiful course, a very beautiful exam, one of the toughest exams in the country, CMA. For that, many congratulations to all of you. Welcome to the first session of the Placement Mantra, where we'll touch every single skill you need to brush up, you need to take care of before cracking your interviews. So, in this very first session, which is how to fill the placement form, how to fill the ASTP form which we have been provided with our results. So हम यहाँ पे क्या करने के वाले हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, इंश्योरिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें जो ये मेरे स्क्रीन पे आपको जो ये फॉर्म दिख रहा है, वो फॉर्म को हम डिटेल से भरेंगे। क्या क्या FAQs आपके माइंड में आ सकते हैं, जो भी है मैं अपनी ओर से पहले से ही क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अगर फिर भी उसके बाद आपके मन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट पॉज मी एंड आस्क मी। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, great, nice. We are going to make this session interactive. Okay, I am just now starting, let's filling my screen. So I have one of the registration numbers of our friends, so I'll use that form. So whose number is this? This is of one of my great students, CMA Jagdish Prasad Sahu. Okay, so this is how the screen will look like. Advanced Skill Training Program, ASTP for June 2025. So like lot of us getting confused, like sir ये ASTP क्या है? पहले तो प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, अभी नाम बदल दिया है, तो कुछ चेंजेस हैं क्या इसमें, क्या चीज़ है? सो फ्रेंड्स, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, नाम बदला है, कोर्स का कंटेंट थोड़ा थोड़ा बदला है, बट yes, the course is same, the purpose is same. In this training you will be given training about your concepts, your soft skills, how to attend interview. There will be mock GDs, mock interviews, everything will be conducted by ICMI mostly for 12 days. Okay, so this is the very same program which used to happen for all our seniors who have already passed, and now this year they have just changed the name. Okay, so Advanced Skill Training Program, or ASTP we can say. So this form is going to decide whether you are going to get shortlisted or not. This is where you need to sell yourself, this is where you need to work on it. Okay, so without wasting any much time, let's start it. So simple things, you have to write your father's name, then you have to select your gender, like male, female, whatever you are. Then you have to select your marital status, whether single, married, divorced, separated, whatever it is. Okay, then you have to select your category. Be very specific with it, because whatever category you are going to select, you have to provide the certificate. Unless you are general, for any other category you are going to select. EWS means economically weaker section. If you are going to for EWS, you have to provide your EWS certificate at the time of interview. Like they do document verification, a lot of shortlisting based on this criteria. So if you don't have the certificate, you should not go for it. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी मेरे पास तो ST सर्टिफिकेट नहीं है, अभी मेरे पास तो OBC सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इन द नेक्स्ट मंथ आई कैन डू इट, आई विल ग्रैब इट, आई विल गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और आई विल गेट इट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। अगर आपको ये चीज़ लग रहा है,
तभी जाके सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि आप शॉर्टलिस्टिंग हो जाएंगे, इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है देन योर अपॉइंटमेंट विल स्टैंड नल एंड वॉइड एट दैट वेरी सेम मोमेंट। ठीक है ना, उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते सर मेरे को और 2 दिन दे दीजिए मैं ला के दे दूंगा। तो अनलेस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कास्ट का, आप ये मत कीजिएगा। सर ओबीसी क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है? जनरली क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है? क्रीमी लेयर मतलब वो होता है कि जिनका इनकम ज्यादा होता है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनका इनकम कम होता है। उस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज को किया हुआ है। ठीक है, am I clear guys? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैं आपको ये बता दे रहा हूं अभी 2 हमारे कोर्स में रिजर्वेशन सिस्टम का अभी तक कोई रोल नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट्स में पीएसयूज में ये कैटेगराइजेशन है, दे फिल वैकेंसीज बेस्ड ऑन द कैटेगरीज। सो ये कैटेगरी को बहुत अच्छे से ध्यान से भरना है। ठीक है, ओके सर। okay, so now let's move to the next part. So then your date of birth, sir, do our date of birth has any relevance? Answer is yes. बहुत सारे जगह पे लिखा जाता है कि मैक्सिमम एज इज 25, 26, 30, 35। कंपनी टू कंपनी ये एज क्राइटेरिया डिफर करता है, तो आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो सर क्या मैं अपना एज 2021 का डेट ऑफ बर्थ डाल दूं? 3 साल का हूं मैं? नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके सीएमए के सर्टिफिकेट्स में जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं। अगर आप यस डाल रहे हैं तो आपके पास उसके लिए वैलिड जो एक्सपायर नहीं हुआ होगा वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वह सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर पीडब्ल्यूडी के लिए आप यस डाल रहे हैं तो यू शुड हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे एक पर्सनल टिप आप सभी के लिए कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं डैशिंग बॉय जीकू, ये ईमेल आईडी नहीं डालना है आपको, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालना है, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है ना, हमको यहाँ पे क्या डालना है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भरना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास ऑप्शन, देन इट कम्स टू माई एड्रेस। एड्रेस में आप कौन सा एड्रेस डालेंगे? आपका परमानेंट एड्रेस डालेंगे, इट इज बेटर। लेकिन और दूसरा हम क्या डाल सकते हैं सर मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ और मैं अभी कहीं और रहना, तो आप वहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या हमारे एड्रेस का हमारे शॉर्टलिस्टिंग पे कुछ इम्पैक्ट रहता है? ऑफिशियली नो, बट अनऑफिशियली यस। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ऑल्सो, नॉट PSUs but private companies, MNCs, they do shortlist based on the location of the candidates. Okay, फिर आपका सिटी आ गया। सिटी में देखिए, आप सिटी में जनरली लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, और स्टेट में आप अपना स्टेट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालिएगा, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। सर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर किसका दे? सर दोस्त का दे दे, मम्मी का दे दे, पापा का दे दे, किसका दे? खुद के पास दोस्त है, मैं खुद का दीजिए, नहीं तो ऐसा एक नंबर दीजिए जो आपको इजीली रीचेबल हो सके। बिकॉज मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे अल्टरनेट नंबर पे कॉन्टैक्ट मेरे नंबर पे नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन, और मेरे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पे जा रहा था। अगर वो नंबर आपका एक्टिव नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो जो अल्टरनेट नंबर दे रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि जब तक आपका प्लेसमेंट्स खत्म नहीं होता वो नंबर एक्टिव रहे, चाहे आपके पास हो, आपके फैमिली के पास हो, आपके फ्रेंड्स के पास हो। ठीक है, उसके बाद 10th और 12th का क्या करना है? सर मैं 10th का तो सबका सेम रहता है। सर मैंने 12th नहीं किया, सर मेरा 10+2 था, मैं स्टेट बोर्ड से था। क्या करना है? स्टेट बोर्ड को भी आप 10th-12th में ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग क्या रहेगा आपका? 12th क्लास का, या फिर 10+2 में जो आपका सेकेंड ईयर रहता है वो सेकेंड ईयर का पासिंग डालेंगे। सर परसेंटेज में मार्क्स डालने को बोला है सर, तो 95.00% लिखना है क्या? आंसर इज नो। 95 आया है तो आपको क्या लिखना है? 95 बस। ठीक है, या फिर मान लो 56.95। उसके बाद में परसेंटेज लगाना है क्या? आंसर इज नो। सर इस मार्क्स का कहाँ पे रेलेवेंस है क्या? जी हाँ, बहुत जगह रेलेवेंस है। बहुत सारी कंपनीज 10th 12th में मिनिमम 60% मार्क्स मांगता है,
बहुत सारी कंपनीज, बीट PSU, बीट MNCs मांगते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से भरना है, गलत नहीं भरना है कहीं पे भी। सर हमारा CGPA था, हम CBSE बैकग्राउंड से हैं, तो क्या करना है, इंटू 9.5। आपका 10 CGPA था, इंटू 9.5 करेंगे, 95% आएगा। आपका 8.8 CGPA था, 8 पॉइंट इंटू 9.5 करेंगे, उस हिसाब से आपका जो आ जाएगा 8.8 इंटू 9.5 कर देंगे, 83.6% आ रहा है। तो जनरली आपको ये करना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे पूछा जाएगा आपने ये कैसे डिराइव किया, तो आपके सर्टिफिकेट के पीछे ये वाला लिखा रहता है, ये कैलकुलेशन वाला, ये आप उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही 12th में तो जनरली सबको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको कर सकते हैं। CBSE में जनरली बेस्ट 5 का कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट बोर्ड में सारे सब्जेक्ट्स कंसिडर करने रहते हैं, तो जिसका जैसा रहता है आपका परसेंटेज डिटरमाइन होता है, उस हिसाब से आप आपका परसेंटेज डिटरमाइन करके, मान लीजिए मेरा 83.82 है, क्या 83.82, तो 83.82 भर देंगे। नेक्स्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, BCom BSc। अंडरगोइंग है तो अंडरगोइंग डालेंगे। मान लीजिए अभी मैं अपने आखिरी सेमेस्टर पे हूँ, एज ऑन द डेट ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म आई एम इन माई 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, या फिर आई एम ऑन दी 1st सेमेस्टर, जो भी आप सेमेस्टर में है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको वहाँ पे क्या डालना है, अंडरगोइंग डालना है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कर ही नहीं रहे हैं, तो आपका नो ग्रेजुएशन में आएगा। सर यहाँ पे एक डाउट है, सर अगर मैंने इग्नोर से किया है तो वो क्या मेरे ग्रेजुएशन में कंसिडर होगा? आंसर इज यस। आपको क्या सिलेक्ट करना है वहां पे? BCom ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग होगा 2023, 24, 25 जो भी है, अगर आप अंडरगोइंग है तो अंडरग्रेड प्रोबेबल ईयर ऑफ पासिंग देगा, ठीक है। हम अंडरगोइंग में भी एक बार देख लेते हैं वो क्या मांग रहे हैं हमसे। तो अंडरगोइंग में देखिए उन्होंने 0 ले लिया, क्यों? क्योंकि अभी तक आप पास हुए नहीं है। अदर्स में आप क्या डाल सकते हैं? मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, जनरली डिप्लोमा में के बाद हमारे यहाँ आते नहीं, लेकिन मान ली किसी ने डिप्लोमा किया है, या फिर इंडियन ग्रेजुएशन नहीं किया, कहीं फॉरेन में किया था, फिर आकर अभी इंडिया में CMA कर रहे हैं, तो फिर आप अदर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सर वहां पे भी तो क्या होता है, वहां पे भी तो हमारा मतलब जनरली CGPA में मार्क आता है, क्या करना है, सेम 9.5। जनरली जहां पे भी आपको CGPA दिखेगा तो आपको 9.5 मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपके जो मार्कशीट है, आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट है, उसके पीछे आपको कैलकुलेशन का मेथड मिल जाएगा, ठीक है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आपको डालना है, नहीं किया है नहीं डालना है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको क्या डालना है? नो पोस्ट ग्रेजुएशन, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगेन क्या है, अगर आपने किया है, मार्क्स आपको पता है, आप मार्क्स डालेंगे, CGPA इंटू 9.5 करके डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आएंगे, सर ये अटेम्प्ट्स काउंट कैसे होंगे मेरे? लाइक मैंने एक अटेम्प्ट अभी दिया, एक अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिया, एक एक ग्रुप करके दिया, तो वहाँ पे काउंट होगा का? यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। सी, आई एम ए कैंडिडेट, आई हैव अपीयर्ड बोथ ग्रुप्स in June attempt. I got only one group clear, first group, second group didn't got cleared. I cleared that in December attempt. So how many attempts will be counted? For group 1, it will be counted as 1 attempt. For group 2, it will be treated as 2 attempts. Am I clear? Again I am repeating. I have been appearing 2 groups simultaneously in the June attempt. Only one group got cleared, another group didn't got cleared. So the group which got cleared, that will be considered as cleared in first attempt, cleared in one attempt. Whereas I have appeared for the second group which I didn't get cleared in the December attempt. Then in December attempt I cleared it. So it will be considered as 2 attempts. But this is one case. Second case, what can happen? I appeared only for single group in one attempt. I cleared it. In this another attempt, I appeared for another group and I cleared it. In that case, you will be considered as first attempt. I will give you just an example. Number of attempts 1. See, what is it is written? Intermediate stage 1. Stage 1 is group 1. Month of passing June. Year of passing, let's say it is 2017. Suppose. So if I have cleared in the very same attempt, I will select as again June, again 2017. Suppose I didn't clear group 1 in the same attempt. I have to reappear it in the December and I did it. In that case, it will be my second attempt or third attempt or fourth attempt, whatever it may be. Okay. So here what will be the month of passing? December or June, depending. Suppose I have selected 3 attempts. So in that case, it will be become June 2018. I hope I am clear.
suppose what I have done is I am appearing single group wise, like one group, one attempt. So in that case, December I will write, and I will write as 2017. Sir, is it possible, is it okay to write like I have appeared for CMA Inter Group 1 in June 2017 and then appeared for CMA Inter Group 2 in December 2020? Is it possible, is it okay to write? Yes, you have to write the true facts, you have to write what you have done. Okay, दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, एक ग्रुप क्लियर हुआ, एक अटेम्प्ट, दो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, बाद में क्लियर हुआ, उसका 2 अटेम्प्ट काउंट होगा. एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं तो एक एक ग्रुप कंसिडर किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब दोनों एक साथ किया होगा तो ही फर्स्ट अटेम्प्ट. आप जब भी एग्जाम पहली बार लिख रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट. सर मैं एब्सेंट था, मैंने एग्जाम्स लिखे नहीं एक भी, मैंने बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मैंने एक ही ग्रुप लिखा, दूसरा ग्रुप मैंने लिखा नहीं, विल इट बी कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट? आंसर इज नो. अगर आपने एक भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया, चारों के चारों पेपर में आपका एब्सेंट था, तो उस केस में इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट. मैंने बोथ ग्रुप के लिए जून में एग्जाम के लिए रजिस्टर तो किया था लेकिन मैंने सिर्फ ग्रुप 1 लिखा, ग्रुप 2 लिखा नहीं, मैंने ग्रुप 2 दिसंबर में लिखा, ग्रुप 2 दिसंबर में क्लियर हुआ, तो आपका ग्रुप 1 1 अटेम्प्ट काउंट होगा, ग्रुप 2 भी 1 अटेम्प्ट काउंट होगा. एम आई क्लियर? अभी तक मैं क्लियर हूं ना सब कुछ? ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों के बीच में, सर हमारा अटेम्प्ट कैलकुलेशन कैसे होगा? मैंने सर एक एग्जाम दिया था, बाकी एग्जाम्स नहीं दिए थे, क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? आंसर इज यस. सर मेरा एग्जाम्शन था एक ग्रुप में, मैंने दूसरी मतलब मान लीजिए मैंने 8 पेपर दिए, एक ग्रुप क्लियर हो गया, दूसरा ग्रुप में क्या हुआ, 2 पेपर में एग्जाम्शन थे, बाकी फिर मैंने 2 दिसंबर में देखिए उसको निकाला, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 2 अटेम्प्ट्स. लेट मी रिपीट अगेन. I have appeared for 8 papers, I have cleared one group, in another group I have 2 exemptions in June attempt. What I did is I appeared for the remaining 2 papers in the December, okay, so and I cleared it in the December. So how many attempts will be considered? Answer is 2. Okay, sir, how will marks will be totaled? As you know, 2 marks of this like 2 papers what you scored in June and 2 papers what you scored in December, and you have to total it and you have to calculate your percentage. Sir, how the percentage will be calculated? Is it out of 400 or is it out of 800? Obviously, since you are calculating this group wise, it will be out of your 400. Okay, 338 by 400, 200 by 400, 248 by 400. Sir, 199 by 400 होगा क्या? आंसर इज यस. अगर आप सेट ऑफ में पास हुए हैं तो 199 by 400 भी हो सकता है. यू कैन स्कोर बिलो 50% एंड यू कैन स्कोर. सो अगर कहीं पे लग रहा है कि सर मेरा तो 50% के नीचे रिजेक्ट हो जाएगा क्या? आंसर इज नो. अब आप पास हुए ना, आपके पास सर्टिफिकेट है ना, तो इट इज एनफ. एम आई क्लियर? जैसे इंटर के लिए था, फाइनल के लिए भी सेम था. सर हमने इंटर का एक ग्रुप 2000 फाइनल हो इंटर हो, एक ग्रुप मैंने 2016 सिलेबस में कंप्लीट किया है, एक ग्रुप 2022 सिलेबस में कंप्लीट किया है. सर इज इट ओके, क्या इसको हम अटेम्प्ट कंसिडर करेंगे? या फिर मैंने 2016 सिलेबस में एक अटेम्प्ट दिया था, 2022 में वो सेकंड अटेम्प्ट हुआ मेरा, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, सो विल इट बी कंसिडर एज 2 अटेम्प्ट्स? आंसर इज यस. सर मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था, उस टाइम पर मैंने 2 अटेम्प्ट्स लिख दिए थे, अभी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा के और मैंने किया तो मेरे को और 2 हुआ, सो विल इट बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट? यस. सो आप जितनी बार एग्जाम्स दे रहे हैं उतनी बार आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, चाहे आपको ओल्ड रजिस्ट्रेशन हो या न्यू रजिस्ट्रेशन हो, ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. एम आई क्लियर? लेट्स सी, रैंक इन इंटर, रैंक इन फाइनल, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए एक चीज है एग्रीगेट परसेंटेज. ये एग्रीगेट परसेंटेज ऑटोमेटिकली 50 से ज्यादा होगा. अगर 50 से ज्यादा नहीं हो रहा होगा तो फिर आप पास ही नहीं करते, तो ये ऑटो कैलकुलेट होगा, तो इसका कुछ ये नहीं है, ठीक है ना. ये बोल रहा है एग्रीगेट, ये चारों का जो एग्रीगेट है, ये चारों का जो एग्रीगेट है ये 50 से ज्यादा होना चाहिए. कोई एक वहां से 49 हो सकता है, दूसरा 51 हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है. फिर क्या है, रैंक इन इंटर, रैंक इन फाइनल. सर मेरा 3 था तो 3 लिखना है या 03 लिखना है? आपको जैसा लिखना है लिख दीजिए. व्हाट इज सजेस्टेड? 03. 1 आया है 01, 10 आया है 10, 50 आया है 50. सर मेरे साथ रैंक में और 2 जन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रैंक आया है लिखेंगे. नहीं आया है सर 00 डालना है क्या? आंसर इज नो. यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्ट्रिक्स है, स्टार है,
इसका मतलब कंपलसरी है, लेकिन रैंक में एस्टेरिक्स नहीं है कहीं पे भी। तो आपका अगर रैंक नहीं आया है तो 0 0 डैश कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कीप इट ब्लैंक। रैंक आया है डालिए, इंटर में आया है इंटर में डालेंगे, फाइनल में आया फाइनल में डालेंगे। ऐसा होगा कि इंटर में आया फाइनल में नहीं आया तो फाइनल में 0 0 नहीं डालना है, लीव इट ब्लैंक। फाइनल में आया है इंटर में नहीं आया है, 0 0 नहीं डालना है। कोई ऐसा होगा, सर AIR 50 का 503 था, मेरा 502 था, तो मैं AIR 51 डाल सकता हूं क्या? आंसर इज नो। अप टू 50 तक की रैंक है। 50 के बाद आप मान लीजिए आपके किसी दोस्त का AIR 50 आया 503 में, आपका 502 है, तो आप यहां पे रैंक पे 51 नहीं डाल सकते, ओनली 50 तक ही डालना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। सर यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, हम क्या डालें? मान लीजिए अब यहाँ पे मैं बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे थे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन PCMA में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का डालेंगे। आर्टिकलशिप किए, चाहे आप CA फर्म में किए हो, CMA फर्म में किए हो, या फिर किसी बिजनेस के अंडर किए हो, या फिर किसी दूसरे कंपनी में किए हो, दैट डजंट क्वालिफाई अंडर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उस केस में आपको यही डालना है। सर मान लीजिए हमने दोनों किया है, बहुत सारे जन ऐसा रहते हैं कि 3-4 महीने इसमें करते हैं, फिर और 10-12 महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते, तो वहां पे क्या डालना है? जो आपका मेजर कंपोनेंट था, अगर इक्वल हो रहा है तो ऑब्वियसली आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज जो आपका मेजर कंपोनेंट था, आपका अगर आपने 10 महीने आर्टिकलशिप की और 5 महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो यहाँ पे आपको आपका डालना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला नहीं डालना है। नाउ सर यहाँ पे यह कितना ईयर्स कितना मंथ सिलेक्ट करना है? 0 है तो 0 ईयर्स, 1 ईयर है तो 1 ईयर, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स, जो आपको डालना है वो डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डिटेल्स ऑफ वर्क अंडरटेकन। अब वर्क अंडरटेकन का कैसे क्या होगा? सर यहाँ पे क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। मैं कुछ भी यहाँ पे मेरे को टाइप ही करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ कॉपी पेस्ट। देखिए मैंने कॉपी किया हुआ है, फिर भी आपके सामने एक बार कर दे रहा हूँ वापस, इनका नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+C मैंने किया, यहाँ पे मैं आके Ctrl+V कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको भरना है। अब सर इसको कैसे भरें? हम इसको पैराग्राफ वाइज भरें, बुलेट पॉइंट्स वाइज भरें, कैसे भरें? अब बुलेट पॉइंट्स वाइज भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पैराग्राफ वाइज भरेंगे तो कैसे भरेंगे? आंसर इज आपको पॉइंट वाइज भरना है, पैराग्राफ वाइज नहीं भरना है। सर अब पॉइंट वाइज कैसे भरना है? यहाँ पे तो बुलेट का ऑप्शन नहीं है। आप दो चीजें कर सकते हैं, इधर आप हाइफन डाल के लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन जाना है, आई एंटर। ऐसे करते करते आपको जितना जितना पॉइंट है लिख सकते हैं। सर मेरे को ये हाइफन वाला मजा नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? इससे लिख सकता हूँ। ये भी मजा नहीं आ रहा, मैं स्टार यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। सर क्या मेरे को लंबा चौड़ा करके लिखना है? यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स बोला है, 500 इज द मैक्सिमम। लंबा चौड़ा करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट टू द पॉइंट, टू द वेरी क्रिस्प। स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ PSU, ऑफ लिस्टेड कंपनी, ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, खत्म। इंटरनल ऑडिट किया है, इंटरनल ऑडिट ऑफ दिस। कॉस्ट ऑडिट किया है, कॉस्ट ऑडिट ऑफ माइनिंग सेक्टर, कॉस्ट ऑडिट ऑफ स्टील इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑडिट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। जो आपने किया है वो लिखना है। आपने इनकम टैक्स का फाइलिंग किया है, इनकम टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स ऑडिट किया है किसी CA के अंडर में, इनकम टैक्स ऑडिट। GST रिटर्न फाइलिंग किया है, GST रिटर्न फाइलिंग। सिंपल से लिखना है, ज्यादा उसको एलाबोरेट नहीं करना है, बिकॉज जो भी पढ़ेगा वो 2200 कैंडिडेट्स का पढ़ रहा है, आपके जितने बच्चे पास हुए सबका पढ़ रहा है। तो अगर आप स्टोरी लिखेंगे वो इग्नोर करके चला जाएगा। तो राइट टू द क्रिस्प, टू द पॉइंट, छोटे छोटे वर्ड्स में इसको लिखना है। ठीक है, यहां पे देखिए प्रोफेशनल डिग्री, अदर प्रोफेशनल डिग्री आपने क्या किया? ऑप्शंस क्या क्या है? आपने CA किया है, CS किया है, MBA किया है, CFA किया है, LLB किया है, आपने दोनों किया है, या फिर कुछ परस्यू कर रहे हैं। आपको क्या डालना है यहाँ पे? देखिए CA कंप्लीट हो गया है, CA डालेंगे। आप फाइनल के एग्जाम के लिए अपियर हुए हैं, रिजल्ट्स तो अभी आ गए हैं, मान लीजिए आप अपियर होने वाले हैं सितंबर में, या फिर आप मान लीजिए जनवरी में अटेम्प्ट करने वाले, तो CA परसुइंग में रहेगा। आपने CS कंप्लीट कर दिया है तो इसमें डालेंगे, परस्यू कर रहे हैं इसमें डालेंगे। आप CA CS दोनों है, CA MBA दोनों है, MCA आपने किया है तो ऐसा डालें। सर मैं CA भी परस्यू कर रहा हूँ, CS भी परस्यू कर रहा हूँ, क्या दोनों डाल सकता हूँ? आंसर इज नो, कोई एक ही आपको डालना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एम आई क्लियर? या फिर मान लीजिए आपने ACCA किया हुआ है आपने, या फिर सीमा किया हुआ है, कुछ किया है, तो उस केस में आपको क्या डालना है? अदर्स डाल के करना है। ठीक है,
अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट, आपको इसका मार्कशीट आपके साथ कैरी करना है, ठीक है। अब मैं सीए कर रहा था मेरे प्लेसमेंट्स के टाइम पे, तो मैंने सीए परसुइंग पे डाल दिया। अब ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, आपका फाइनल जनरली जब ड्यू है आप वो वाला ईयर डालेंगे। 2025 में होगा 25 में डालेंगे, 26 में होगा 26 में डालेंगे। ना सवाल ये खड़ा होता है सर यहाँ पे परसेंटेज कैसे डालेंगे। लाइक मैं अपने इंटर के मार्क्स डालूं, फाइनल एक ग्रुप हो गया तो फाइनल एक ग्रुप पे परसेंटेज डालूं, या फाउंडेशन के परसेंटेज डालूं, कैसे डालूं। जितना भी एग्जाम खत्म हो गया है सबका टोटल मार्क्स लेना है, सबका मार्क्स सिक्योर लेना है और परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का एक ग्रुप हो गया है तो 1200 में से आपके कैलकुलेशंस हो गए। मान लीजिए सिर्फ फाउंडेशन इंटर हुआ है तो 800 से कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए फाउंडेशन सिर्फ हुआ है तो 200 से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो एग्जाम्स खत्म हुआ है उस बेसिस पे आप कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे भी एस्टेरिक्स नहीं है, ठीक है। देन प्रोफेशनल डिग्री का हमने बात कर लिया। सर ये करंट एक्सपीरियंस में हम क्या डालेंगे। अगर आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं या फिर आपका अभी तक क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, तभी यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है तभी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ऐसा बहुत जन का हो सकता है कि अभी तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में है, तो जो भी चीज आपने यहाँ पे डाली थी वही चीज आपको क्या करना है, इसी में डालना है। एम आई क्लियर। अभी तक समझ आए, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। Yes, sir. सबको क्लियर है, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। सर जैसे मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 जगह पे किया हूँ, तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे मेरे को कुछ मेंशन करना पड़ेगा देखिए या करंट एक्सपीरियंस और प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल्स में देखिए अब आप बोल रहे हैं आप 2 जगह पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हैं, तो आप जनरली क्या कर सकते हैं आपके केस में, अगर आपने मान लीजिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो किया है, आपने जो T4 फॉर्म होता है, T3 T4 होता है, वो आपने जो फिल किया था, अगर दोनों के लिए T3 T4 फिल किया है तो जिसमें आपने ज़्यादा टाइम दिया है उसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए दोनों में आप 1-1 साल थे या फिर 1 साल से ज़्यादा थे, तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक डाल देंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, और आगे अभी अगर आपका चल रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा हो सकता है कि आपने सीएमए प्लस ये किया होगा, क्या बोलते हैं पीसीएमए के अंडर भी किया है, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया है, तो जो आप यहाँ नहीं डाल रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में। प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल्स दिख रहा है आपको, उसमें आपको डालना है। एम आई क्लियर। तो अभी मान लीजिए जैसे देखिए अभी आपका जगदीश मैं आपका ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले किया मान लीजिए सपोज एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर आपने 3 मंथ्स किया, फिर आपने एनएलसी में 8 मंथ्स किया, फिर आप एनएमडीसी में अभी बहुत साल से हैं, 2 साल से हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं आपकी जगह होता क्या करता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैं एनएलसी वाला डाल देता, करंट एक्सपीरियंस में मैं एनएमडीसी वाला डाल देता, और प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैं क्या करता, प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैं अपना ये डालता जो कॉस्ट अकाउंटेंट वाला एक्सपीरियंस है। एम आई क्लियर। आपको यहाँ पे क्या करना है, खुद को बेचना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ सेलेबल, यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेस्ट प्रेजेंटेबल टू द एम्प्लॉयर। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए एक जगह पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड आ रहा है, एक जगह पे एनएमडीसी इंडिया लिमिटेड आ रहा है, और एक जगह पे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का आ रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, आपका जो भी पढ़ रहा है उसको लग रहा है कि बंदे के पास 3 डिफरेंट जगह का एक्सपीरियंस है। अब लेकिन मान लीजिए आपका अभी खत्म हो चुका है एनएमडीसी का, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में क्या करेंगे, एनएमडीसी का डालेंगे, करंट में कुछ भी नहीं डालेंगे, और प्रीवियस एक्सपीरियंस में एनएलसी और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों डालेंगे। एम आई क्लियर। अब देखिए करंट एक्सपीरियंस से आपको क्या डाला, आप जहां पे सर मैं जहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था अभी भी चालू है, तो क्या सर रिपीट होगा, आंसर इज यस। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो लिख रहे हैं आपको सेम चीज यहाँ अगेन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको बार बार लिखने पड़ेंगी चीजें, बट यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। एम आई क्लियर। Yes, sir. ओके,
नेक्स्ट चीज, सर यहाँ पे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखा है, यहाँ पे कौन से एक्सपीरियंस लिखने हैं? जो मेरे सीएमए के हैं वही लिखना है, या फिर इसके अलावा मैं कोई दूसरा इंटर्नशिप किया हूँ, दूसरा जॉब किया हूँ, वो भी लिखना है? आप सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पे आपको 4 फील्ड दे रहा है ना, 4 में आप जितना भर सकते हैं भरिए, चाहे वो रेलेवेंट हो इरेलेवेंट हो, आपको भरना है। आप सीएमए में हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी सेल्स में किया है, आपने कभी किसी बैंक में इंटर्नशिप किया है, आपने किसी डॉक्टर के पास इंटर्नशिप किया है, आप किसी स्टेडियम में इंटर्नशिप किए, हर चीज लिखिए, बिकॉज योर एवरी एक्सपीरियंस काउंट्स इवन इफ इट इज इरेलेवेंट। बिकॉज एम्प्लॉयर क्या देखेगा, ये बंदा 10 जगह पे काम किया है, इसके पास टोटल 2 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस है, तो ही दैट पर्सन नोज हाउ टू वर्क, हाउ टू ऑपरेट इन ए एनवायरमेंट, इन ए वर्क एनवायरमेंट, इन ए कॉर्पोरेट एनवायरमेंट। तो चाहे इरेलेवेंट भी हो, आपको लिखना है। बहुत जगह के आपको ये बोलेंगे कि नहीं मत डालिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में कि सर एक्सपीरियंस डालना है या फ्रेशर डालना है, हम क्या है? तो सुनिए अच्छे से, इफ यू आर डूइंग ए जॉब अदर देन योर आर्टिकलशिप, अदर देन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, then you have to select experienced. You have taken a break, you have done a good amount of job, like there are a lot of people who are because of some or other reason have experience of 3-4 years, then after that they will go for again final, so they can select as experienced. Experience does not necessarily mean post qualification experience, because you have qualified now, so you will not have any post qualification experience, but any experience in and addition to your 15 months or 18 months or 2 years or 3 years, whatever is your industrial training period or your articleship period or your practical training period, उसके अलावा आपने जितना भी एक्स्ट्रा किया है वो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अदरवाइज आपको क्या डालना है? फ्रेशर में डालना है। एम आई क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, सीवी। सीवी आपका डालेंगे। सर सीवी क्या रहेगा, कैसे रहेगा? इस पे हमारा डिटेल्ड सेशन है। अभी थोड़ी देर में हम सीवी के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बात कर लेंगे, बट अगेन सीवी कैसे क्या बनाना है हम एक डिटेल सेशन देखेंगे, उस हिसाब से हम अपना सीवी बनाएंगे। एम आई क्लियर? सर फोटो और सिग्नेचर क्या डालना है? प्लीज इंश्योर योर फोटो शुड बी वेरी मच फॉर्मल। कोशिश कीजिए लड़के हैं लड़कियां हैं ब्लेजर में डालें, नहीं हैं तो वेयर ए फॉर्मल ड्रेस। अगर लड़कियां हैं तो कुर्ती या साड़ी में रहे, लड़के हैं तो ट्राई टू बी इन ए ब्लेजर, इन ए सूट, और एटलीस्ट वेयर ए प्रॉपर फॉर्मल शर्ट। सर टाई पहनना है क्या लड़कों को फोटो में? आंसर इज वेरी मच रिकमेंडेबल। सर बिना टाई पहने नहीं कर सकते क्या? करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, करने को मैं टी शर्ट में भी फोटो डाल दो, बट आपको क्या करना है, अच्छा सा फोटो देना है। क्योंकि अगर कंपनी कभी आपके फोटो को देख रही है तो उसको ये एक इमेज आना चाहिए, ये एक वाइब आनी चाहिए कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, ये अपने जॉब के रिलेटेड सीरियस है, ये कुछ भी फोटो नहीं दे रहा। सिग्नेचर सर कैसा रखना है, क्या रखना है? सर जो हमने इंस्टीट्यूट को सिग्नेचर दिया था क्या वही सिग्नेचर रहेगा? आंसर इज नो। आप कुछ भी अपना जो भी आपको सिग्नेचर डालना है आप डाल सकते हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली मैच विथ व्हाट यू हैव गिवन इन द इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट सिटी फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेकंड सिटी फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंटरव्यू लोकेशन। ये तीन के बारे में हम अभी एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज दिस 3 इज गोइंग टू डिसाइड वेयर इज योर शॉर्टलिस्टिंग स्टैंड्स। आप कितना इजीली प्लेस्ड हो रहे हैं, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके प्लेसमेंट्स में इंस्टीट्यूट के, वो किससे चीज़ से डिसाइड होगा? ये 3 चीज़ों से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, रेडी टू रीलोकेट इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, येस और नो। अगर आप नो डाल रहे हैं तो कंसिडर्ड यू आर अनप्लेस्ड। अगर आपका नो है मतलब कंपनीज कंसिडर ही नहीं करेंगी इन द 99.99% केसेस। देयर विल बी रेयरली एनी कंपनीज जो शॉर्टलिस्ट करेंगी इस बेस पे, ठीक है? बिकॉज एवरीवन वांट्स कैंडिडेट्स हु आर फ्लेक्सिबल टू मूव, हु आर रेडी टू रीलोकेट। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे यस कर दिया तो फिर आपको रीलोकेट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना?
आपको कंपनी आपकी होम पोस्टिंग दे सकती है, आपके नियर बाई पोस्टिंग दे सकती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे मुंबई दिल्ली के, वो येस डाले होंगे लेकिन उनको मुंबई दिल्ली में ही मिल जाएगा पोस्टिंग। तो नॉट नेसेसरी आपने येस डाला इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर के पास भी होगा तो भी वो उनको दूर डालेंगे, लेकिन आपको येस करना है। अगर आपने नो किया तो आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इंटरव्यू लोकेशन बता देता हूँ, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। सर हमने तो बहुत सारा देखा था इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? चलिए आपको मैं इंस्टीट्यूट का वेबसाइट दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है। दिसंबर का ही ओपन करते हैं। देखिए कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, जयपुर में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, मुंबई में हुआ है, पुणे में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, अहमदाबाद हुआ है, बेंगलुरु हुआ है, कोयम्बतूर हुआ है, विजयवाड़ा हुआ है, हैदराबाद हुआ है। सर इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 क्यों दिखा रहे हैं सर? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। इसका रीज़न ये है, दिस आर दी मेन 4 सेंटर्स, दिस आर दी मेट्रो सेंटर्स हम बोल सकते हैं, दिस आर दी मेन 4, जिसके बेसिस पे फिर यहाँ से फिर सब सेंटर्स आते हैं, वहाँ पे होते। तो ये जो दूसरे सब सेंटर्स हो गए, जैसे मुंबई, सॉरी अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, विजयवाड़ा हो गया, इन सब पे शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो एक्सेप्ट दिस 3, किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए। ओके देन ग्रेट, लेट्स स्टार्ट यू नो दी थिंग कि अभी इसको कैसे हैंडल करना है हमें। ये जो 3 हमने छोड़ा ना, ये 3 क्या क्या ऑप्शंस है, पहले एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में देखेंगे। व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव? अहमदाबाद, बैंगलोर, भिलाई, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, सूरत, त्रिशूर। दिस आर द ऑप्शंस वी आर हैविंग, ठीक है। सेकेंड सिटी में भी क्या है, यही सेम ऑप्शंस है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, विजयवाड़ा। इसमें भी विजयवाड़ा है क्या? आंसर इज यस, इसमें भी विजयवाड़ा है। ओके, तो जो चीज यहीं पे है यहीं पे है। अब कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अहमदाबाद में मान लीजिए अब ये 10 या 15 कंपनीज आई, तो ये 10-15 कंपनीज कौन से कैंडिडेट्स को चूज करेगी? आई मीन शॉर्टलिस्टिंग जो होगा कौन से कैंडिडेट्स का होगा? उन कैंडिडेट्स का होगा अगर आप साइमल्टेनियसली क्यूमुलेटिवली ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तभी जाके होगा। लाइक बट पहले जो आता है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस, आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेरा एएसटीपी था बैंगलोर में, ठीक है, और मैंने क्या किया, जो मेरा मेन प्लेसमेंट का सेंटर है उसको मैंने भी कंसिडर फॉर हैदराबाद। आंसर इज यस, प्रायोरिटी क्या रहेगा? सेकंड। डू यू गाइस अंडरस्टूड कैसे होता है ये? मतलब जनरली इंस्टीट्यूट का ये जो प्लेसमेंट में जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट डाटा भेजती है या फिर कंपनीज जो डाटा मांगती है हमें, ये कैसे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, कौन से बेसिस पे आपका जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए जाता है, आप किस में से शॉर्टलिस्ट होते, वो समझ आया आपको? तो आपको करना क्या है, आपको एक बेवकूफ़ी नहीं करनी है। क्या कि देखो, जैसे आपने पूछा ना कि मैंने भुवनेश्वर सिलेक्ट किया था लेकिन मेरा दिल्ली था, मैंने वो गलती की थी, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड भुवनेश्वर है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे वेदांत शर्मा, कहीं पे भी आपको नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। एनबीसीसी इंडिया ही है, ठीक है, फर्स्ट फेज में। फिर हम जाते हैं दिल्ली, दिल्ली में डे 2 में आएगा आपका एनबीसीसी इंडिया, वहां पर मैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में जाऊंगा। देखिए सीरियल नंबर 1 क्या है? वेदांत शर्मा। वेदांत शर्मा। तो बात क्या है, गलती मैंने की? अरे अरे यार रुक जाओ यार, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं पॉइंट ये है कि गलती मैंने की थी तो मेरे को पता है कि कहाँ पे तुम लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। 14 लाख की गलती थी यार, बट 20 लाख था, उसके ऊपर 20 लाख थे ना, तो 14 लाख पता नहीं चला, अदरवाइज ये 14 लाख की गलती हुई थी मेरे से। सर ये चीज़ें डिसाइड कैसे होती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
इधर आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट बहुत सारे टाइम का जो प्लेसमेंट ट्रेंड है कि कौन से सिटीज़ में जा रहा है आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज दी प्लेसमेंट मंत्रा का 999 वाला जो स्पेशल बैच है आपके लिए वो आप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए हम एनालाइज करके आपको बता देंगे कि कौन सा क्या करना है, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर सेशन नंबर 1। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा, आपको कुछ नया सीखने को पता चला होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो दिस इज ऑल इट, दिस इज CSCMA वेदांत शर्मा signing off from the session 1 of the placement mantra.